कर तेरे दरबार, हमको कर तेरे दरबार। पौके आगे बदन पसार, पौके आगे बदन पसार, पौके पौके आगे बदन पसार, पौके आगे बदन पसार, पौके हमको कर तेरे दरबार, हमको कर तेरे दरबार, को कर तेरे दरबार। वाह। सतगुरु महाराज खंडा ब्रह्मंडा के स्वामी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु बाबा जी के पावन चरणों में आन जुड़ बैठे एकत्रित संगत जी, सबनों मुबारक ने जो गुरुद्वारा साहब के सच्चे प्रबंध के अधीन बनाए प्रोग्रामों के अनुसार आप जी सारे जुड़ के ते बनाए हुए प्रोग्रामों को खूबसूरती के नाल सिरे चढ़ा रहे भला तुहानू सबरां नूं खालसा जी के साधना दिवस दीआं 325वें साधना दिवस दीआं बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारकां। मानयोग भाई साहब जी पंथ का मान भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले मेरे वीर बड़े प्यार के नाल शब्द कीर्तन सर्व करवा रहे सन, जिवें कि करतार ने उन्होंने एक वसफ बख्शे हुए ने। सुभार सुंदर सुरती सुंदर, तुसीं सारे रस मान रहे सो। अक्सर ही इहो जिहे मौक़िਆਂ ते ना ऐसा हो जाता है, खास तौर पर पुरब के दिनों के विच उत्थे भी हाज़री भर के ना फटाफट तुहाडे तक पहुँचण का यतन किया है। मसा मसा जिन्हों समय अनुसार पहुँच सके हैं। सिक्का जी होरां दा, वीर जी भाई साहब सरदार सुरेंद्र सिंह जी होरां दा, सारे प्रबंध का मुखी सज्जनों का मैं हार्दिक तौर पर धन्यवाद करता। भाई साहब जी होरी जिहड़ा वचन सुना रहे सन, क्यों सुना रहे सन, उन्होंने इमेजिनेशन के विच किहड़ी बात सी जिस करके ना ए लफज ए वचन सानू सुनाने उन्होंने मुनासिब समझे। हमको कर तेरे दरबार पाओगे, क्यों उन्होंने कोई जानते नहीं, पर मैनू ऐसा प्रतीत होता है असी सारे ना उत्थे दे ही खड़ोते हुए हैं, उस लैवल पे ना असी उड्डण वालियां दे विच, ना असी दौड़न वालियां दे विच, शायद असी रींगण वालियां दे विच भी नहीं साहिब। यह उदाहरण थोड़ी जी अलग है, मेरे ध्यान में बात आ रही सी। सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने सानू कित्थों चुक के ते इस मरातबे तक लिया, इस पदवी तक लिया। कुछ उड़न वाले होंगे ने ना पंछी, कुछ तुरन वाले होंगे ने चार पाए हैं पशु जिन्होंने कहा जा सकता है। उन्होंने तो ना हेठली एक बात होती है जिन्होंने रींगण वाले असी आखते हैं, कसर के चलने वाले। असी समझते हैं कि भारतीय समाज जिस तरह असी भी हिस्सा सन, साढ़े वड वडेरे भी हिस्सा सन,
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸਨ, ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ? ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕਿ ਰੀਂਗ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਰੀਂਗ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਦਿਆਲਤਾ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਭਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਵਰਾਂ ਰਾ ਤਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਤਰੀ ਮੇਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਤਰੀਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੇਰਾਜ, ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ, ਰਸਤਾ, ਮਾਰਗ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਰਤਰੀ ਮੇਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਵਸੀਲਾ, ਆਇਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵਰਾਂ ਰਾ ਤਾਜ। ਸਰਵਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਆਪ ਮੁਖੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਆਇਓ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੋਣਾ, ਮੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਣੀ। ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰਵਾਣ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਦੀ, ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। 2006 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਨਿੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਡਿਨਰ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਤਾਂ ਥਾਂ ਸਿਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦਸਤਰਖਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਨਰ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਧੁਆਏ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਫੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ, ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਧੁਆਏ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਦਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਾਤਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਦਮ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਖੜੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ ਧੁਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ
मेरी एक गुजारिश है कि कहते मेरी गुजारिश ये है, तुसी इन्हां सारियां नूं ना सरदार सरदार कह रहे हो, हम आपको भी सरदार बोलते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप यहाँ के सरदार हो, इसलिए हम आपको सरदार बोल रहे हैं। तुम इन सबना लोगों को, सभी को तुम सरदार जी बोल रहे हो, ये कहाँ के सरदार हैं? सरदार मनमोहन सिंह ने मैंने गल दसी, कहते जिहड़ा जवाब दिता ना, मैं सुन के दंग रह गया, उसकी प्यार, उसकी भावना देख के। कहने लगे अरे तुम ये जानना चाहते हो हम यहाँ के सरदार हैं और ये कहाँ के सरदार हैं? हम तो यहाँ के सरदार हैं, ये सारे जहाँ के सरदार हैं, ये कहीं भी चले जाएं ये सरदार ही सरदार हैं। कहना उन्हें अगला सवाल करता, इनको ये सरदारी किसने दी? कहने लगे तुम जानता नहीं, तुम जानते नहीं हो, ननकाना साहब वाला जो बाबा जी है, इनको सरदारी ननकाना साहब वाले बाबा जी ने दी है। इन्नी इन्फॉर्मेशन ही उन्होंने वास्ते बहुत सी। ननकाने वालियां का रूप सन महाराज सतगुरु गुरु कलगीधर साहब। मैं जिस वे लिख रहा था ना बादशाह दरवेश, से मैंने ये घटना याद आई तो मैं अंकित की, शायद तुसां किते वेखी पढ़ी हो। जे सतगुरु महाराज गुरु कलगियां वाले साडे सिर ते सरदारी का ताज ना रखते, असीं सरदार बन सकते सन। साडे सिंघां ने सरदारियां खोईयां ने, सानूं किसी दित्तियां नहीं है, सरदारियां खोईयां ने, असां ने खोईयां बाबा बंदा सिंह होरां ने, खोईयां आली सिंह माली सिंह होरां ने, खोईयां बाबा बघेल सिंह होरां ने, सरदार बघेल सिंह होरां ने, खोईयां सरदार चतर सिंह चढ़त सिंह वर्गियां ने, सारियां ने खोईयां ने। उदों तो लैके साडे नाम नाल ऐसा सरदार जुड़िया, अज असी जगीरदार भावें ना होइए, राजे असी ना होइए, भावें कोई रक्षा ही वाहुंदा पिया होवे ना गुरु का सिख, आवाज़ उन्होंने भी सरदार दी कह के मारते हैं सारे। मैं कई बार पंजाब च इउं देखिया, मैं महसूस करता सा जिहड़ी गल ना साडे इतिहासकारां ने किसी न किसी रूप में लिखी है, जिनकी जात और कुल माही सरदारी नहीं पही, कदा ही कीर्तन ते इनको मृगिंदु करो, हरन हित तुर्क गजिंदु, इन्हीं को सरदार बनाऊं, तबै गोबिंद सिंह नाम कहा। ये सतगुरु गुरु कलगीधर साहब सच्चे पातशाह का एक जिन्होंने एजेंडा आख्या जा सकता है, टॉप एजेंडा से। पर इत्थे ना एक गल जरूर ध्यान रखने वाली साढ़े सारिਆਂ ਦੇ, इस गल का ना इंकशाफ महाराज गुरु कलगीधर साहब रवाल सर के इकट्ठ से आप करते हैं। जिस वे सतगुरां ने खालसा सजाया 1699 1756 बिक्रमी पहली विसाख, तो आले दुआले ना सारे हलचल मच गई कि गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने उन्होंने गुरसिखां नूं जिहड़े पहलां प्यार वाले सन, बंदगी वाले सन, सेवा करन वाले सन, होर सारा कुछ इन्हां गुणां दे मालक सन, बाणी पढ़न वाले सन, उन्हां दे गातरे शस्त्र भी पा दिता है और आखिया ऐ होवेगा तां तुसीं पंज ककारी सिंह मन्ने जाओगे। जरूरी शहरा दिता है, हलचल मच गई। उन्होंने लोगों ने दरखास्त की पहाड़ी राजियां ने गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह के पास, असीं तुहाडे नाल ना बैठ के गल करनी चाहते हैं, कित्थे करिए, तुसीं साडे कोल ना आओ, असीं तुहाडे कोल आनंदपुर साहब नहीं आवांगे। फिर रवाल सर का मेला आ रहा है, उत्थे सारिਆਂ ने इकट्ठे होना होंदा है, असीं सारे इकट्ठे होंदे हैं, जे तुसीं किरपा करके उत्थे आ जाओ तो आपां उत्थे बैठ के विचारा कर लवांगे। चलो फाइनल हो गया, असीं उत्थे में बैठ के मीटिंग करांगे। सतगुरु आए, होर गल्लां करन तो बाद ना ये लोग इस एजेंडे ते आए बई तुसां ने
ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਨਿਭ ਗਈ, ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਥਾਂ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਚਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਤਨ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਭੀਮ ਚੰਦ 1682 ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ 1699 ਦੀ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਬਾਪ ਦੀਪ ਚੰਦ, ਦੀਪ ਚੰਦ ਦਾ ਬਾਪ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਅਤੇ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਅੰਡੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ, ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ ਉੱਥੋਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਸਾਨ ਮੰਨਦਾ। ਔਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਦੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਨਾਨਕੀ ਚੱਕ ਵਗੈਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁਣ ਬੱਧੀ ਹੈ, ਬਈ ਇੱਥੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਛਹਿਰਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕੰਘਾ ਆਦਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਚੱਲੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਧੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਧੋਤੀ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਰਹੀਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨਾ ਜੋ ਤੇੜ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਾਦਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਦਰਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਾਦਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਖੱਤਰੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੰਨੂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਨਾ ਲਾਂਗੜ ਵਾਲੀ ਧੋਤੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਂਗੜ, ਧੋਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਂਗੜ।
सानू लांगड़ ते लांगड़ दोवें पहनने की इजाजत होनी चाहिए है। सतगुरु क्या कुछ होर भी कहने वाली गल है। वो कहने लगे दूसरी गल ये है, दूसरा पक्ष कि जेड़े तुसी ना सारे सिंह बनाए ने, सिख बनाए ने, सिंह सजाए ने, ये सारे साडे कमी ने, साडे अधीन काम करने वाले लोग ने, साडी आग्या विच रहने वाले ने। असी इन्हां दे नाल रल के बैठ के लंगर छकण वास्ते तैयार नहीं हाँ। असी छतरी हाँ। सतगुरु महाराज ने समझाया प्यार नाल, जिहड़ा मैं बचन कहन लगा सा, महाराज ने आप इसकी व्याख्या की। साडे जिवें इतिहासकार लिखते हैं, हजूर ने कहा केस रखण की आग्या गुरु नानक साहब की है। आग्या शब्द में ही फारसी वाले हुक्म कहते हैं, ध्यान रखियो जी। भारतीय बोली में आग्या, फारसी के हुक्म जो असी आम तौर पर शब्द वरतते हैं। इट डज मीन आर्डर। ये आर्डर ये आग्या गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की है। असा ने नवा कुछ नहीं किया। इन्हां सारियां गल्लां नूं असा ने सील बंद किया है। साडे एक विद्वान ने इउं गल समझाई सी कि कुछ होंदियां ने टीचिंग्स, सिक्ख्यावां, कुछ होंदियां ने टीचिंग्स। टीचिंग होंदियां आम तौर पर तुसीं ऐं करिया करो, तुहानूं ऐं करना चाहिए है, यह गल चंगी है, करोगे तो भला होवेगा आदि। कहते हैं उन्होंने टीचिंग्स के विचों ना गुरु कलगीधर साहब ने आर्डर कर दिता, जिसनों आख्या गया कमांडमेंट्स दी। कहने लगे असीं तां कमांड दी है, हुक्म गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का। एक गल। दूजी गल यह है, तुसीं बोधी रखना चाहते हो, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का सारे बोधा रखने वास्ते कह रहे हैं। इतराज वाली किहड़ी गल है इहदे विच। रही गल तुहाडी धोती की कि धोती तुसीं सिर्फ उस वेले पहनते हो जिस वेले किते मैदानी जंग में जाना होता है, उस वेले तुसीं पहनते हो जिस वेले तुसां ने कोई होम यज्ञ इत्यादि कुछ करना होता है। लेकिन असां ने जिहड़ा कछहरा पहनने वास्ते हुक्म किया है, ये गुरु का सिंह हर वेले पहनेगा। घर विच रहिंदा होया भी, बाहर भी, धर्म का कर्म करदा भी, मैदान में जूझदा होया भी, जीवन के हर मौके पर एक कछहरा पहनेगा। हुक्म है। जिहड़ी गल तुसां ने आखी है भी असीं इन्हां दे नाल बैठ के लंगर छकण वास्ते तैयार नहीं हाँ, सतगुरु कहने लगे नहीं, ये गल नहीं है। उत्थे कहते ने अपने प्रिंसीपल साहब होए गंगा सिंह, प्रिंसीपल गंगा सिंह कहते हैं इन्होंने इस गल पर भी इतराज़ किया कि साडा छत्रियां दा नाम सिंह होया करदा सी, तुसां ने नीचां नूं शब्द दिता, उन्होंने तुसां ने नीचां नूं सिंह शब्द दे दिता। यह नहीं होना चाहिए। सतगुरु ने आख्या गुरु नानक साहब की नज़र दे विच ना कोई उत्तम है ना कोई नीच है। कर्मा करके ही उत्तम है। जिहड़ा शुभ कर्म नहीं करता वो उत्तमां दे घर जम के भी नीच हो जाता है, उसनूं परवानिया नहीं किया। इत्थे जन्म जात की गल नहीं जे हैगी सतगुरु गुरु नानक साहब जी घर विच, सगों उन्होंने सानू इस पासे तोरिया ते सिखाया, नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अत नीच नानक तिन कै संग साथ वड्डियां सिंह प्यारीस, जिथे नीच संभालियां। रविदास जी का बाबा जी का बचन याद कर रहे ना, वाहिगुरू। तुहाडे तो बिना होर कौन कर सकता है? परमेश्वर करतार, नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, हाँ जी, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा मत है छतरता है। अंत में जाके कहते नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैन तरै, कहे रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सब है सारा है। सारियां दा जीवन कारज रास हो सकता है,
सर जाना हुंदा है, हो जाना। सारियां दा जीवन सवर सकता है, भावें उन्हां विच कोई मेरे वर्गा चमरटा है, रविदास जी आखते हैं चमार है, भावें कोई जलाहे का पुत्र है, भावें कोई छींबे का पुत्र है, भावें कोई कसाई का पुत्र है, भावें कोई नाई का पुत्र है। जदों करतार नाल जुड़दा है तो करतारी वडियाइयां उसनूं बहुत उच्चा कर देंदियां ने। हजूर ने आखिया असीं तां उन्हां दे गल विच शस्त्र पाया ना, किन्हां दे गल विच शस्त्र पाया, जिहड़े बाणी दे नाल जुड़े होए सन, जिहड़े गुरु के हुक्मां नूं मन के चलदे सन। मैं उत्थे भी वचन करके आया, मैं तुहाडे पास दोहराउंदा। देखो असीं जदों गुरुद्वारा साहब आ रहे हुंदे हां, कई साडे मित्र, साडे बेली, कई साडियां भैणां, साडियां सहेलियां, भैणां दीयां सहेलियां, आओ असीं गुरुद्वारे चले जाओ, तुसीं भी आ जाओ, तुसीं भी आ जाओ सारे जुड़ गए ना। जुड़िया होयां दे विच किते गुरु कलगीधर पातशाह उत्थे फिर तलवार कढ़ के ते आखन भी सिर भेंट करो। कौन सिर भेंट करेगा भला? जिहड़ा किते सहज सुभाਅ आया है। संभव है कि अज साडा मित्र गुरु का सिख होवे, सिख परिवार नाल संबंधित होवे, पर जदों उत्थे सारा इकट्ठ होया सी तां सिखां तो बिना जिहड़े होर लोग जुड़े होए सन, कि उन्हां दे विचों उठ के आके कोई शीश भेंट करने वास्ते तैयार हो सकदा सी? कौन हो सकदा सी? जिहड़ा पहिलां ना इस दा रस मान रहा हुंदा, सतगुर आगे शीश भेट देओ जे सतगुर सच है भावै। मैं शब्द वरत्या है जिहड़ा रस मान रहा हो। केवल सुनना, केवल मत्था टेकना, तुसीं महसूस करोगे कुछ होर हुंदा है। उस अवस्था दे विचों लंघ रहा होवे जिहड़ा, मैं कहूँगा ये अडोलता, ये दृढ़ता, ये भावना, ये सारा कुछ शीश भेंट करने वाली केवल उसे दे अंदर आ सकती है जिहड़ा बाणी दे नाल जुड़िया होया होवेगा। सुधारण नहीं सी कुछ। ये सारे बाणी दे रसीए जिन्हां नूं बाणी जबानी याद सी, जिन्हां ने फौरन बाद विच एक वार नहीं किन्नी वार अमृत का बाटा तैयार किया, खंडे की पौल तैयार की और तैयार करके छकाई। वही इतिहासकार जिहड़े कहंदे ने कि गुरु साहब ने 80,000 का इकट्ठ सी उस दिन, वही कहंदे ने कि 20,000 ने इन्हां दिनां विच खंडे की पौल प्राप्त की। और सानूं सारिआं नूं पता है जिस वेले खंडे की पौल तैयार की जाती है, पंज बाणियां का पाठ करना होंदा है, वो जबानी केवल किया जा सकता है कि गुट के पोथियां फड़ के किया जा सकता है? फिर होर ध्यान करना है। 20,000 ने अमृत पान किया, खंडे की पौल लई। कभी किसी ने सुनिया कि उत्थे कुछ स्पैशल फैक्ट्रियां लाइया हुई सी कछहरे तैयार करने वास्ते, बई फटाफट तुसीं ना कछहरे तैयार कर दो, 2-2 कछहरे हरेक नूं दे के भेजना है? सुनिया कभी किसी ने? कि वो सारे के सारे केसाधारी सन कि नहीं? कि वो सारे के सारे बाणी पढ़न वाले सन कि नहीं? जदों असीं गंभीरता नाल विचारांगे ना, फिर सानूं गल ना लभ जाएगी कि सतगुरु महाराज गुरु नानक साहब ने कृपा की सी। कभी गुरु कलगीधर साहब ने एक होर प्रसंग दे विच ना जाके बचन किया, कहन लगे एक खोता रश खोता ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਾ ਘੁਮਿਆਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੂਪੀ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ श्री सतगुरु जी ने बख्शे सकल पदार्थ खास शुभ गुणा के पदार्थ बख्शे। एक दिन आया ऐसा कि श्री अकाल पुरख को बाना
दे मैं कियो सिंह समाना। अकाल पुरख का बाणा दे दिता साने, शेर के बराबर बना दिता। तिसके तरे सदा सुखे होई, त्यागे दोनों लोक न ढोई। त्यागे दोनों लोक न ढोई, रहे गधे को गधा सोई। जे अकाल पुरख का बाणा तक प्राप्त करने वाला है, जे शेर का सिंह दे समान जीवन वाला मनुख, जिस दे हिरदे विच शब्द होवे, जिस दे गातरे विच शस्त्र होवे, फिर किसी तरह ना शब्द तो बेमुख होके चले या शस्त्र तो बेमुख होके चले तो नतीजा की निकलेगा? रहे गधे को गधा सोई, उत्थे ही पहुँच जाएगा। पर यह सच है कि सानू ना जमीन ते रींगदियां होयां नूं सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने उठाया, सानू तुरना सिखाया, सानू दौड़ना सिखाया, सानू उड़ना सिखाया। और गुरु कलगीधर पातशाह ने ना साडे सिरां ते ना ताज रख दिता, सदैव सरदारी का ताज रख दिता। मानयोग जी जिस वे बचन चेते कर रहे सन, हम कुकर तेरे दरबार भौंके आगे बदन पसार। मानयोग भाई साहब भाई नंद लाल जी अज भी जुड़े होए जिहड़े सारा कौतुक वेखते पे ने। बाद विच जाके उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह वार वार लिख के नासरो मंसूर इजदी मंजूर आदि अखीर विच जाके आखिया, महाराज सच्चे पातशाह मैं तो तेरे उन्हां कुत्तियां वर्गा भी नहीं हैगा जिहड़े तेरे दस्तरखान दे भोरे चुग चुग के पढ़ते पे। वाह, उन्हां कुत्तियां वर्गा भी नहीं है। सहल अज इकदाम गुरु गोबिंद सिंह, दागदार नाम गुरु गोबिंद सिंह, कमतरी से सगान गुरु गोबिंद सिंह, रेजा चीन खान गुरु गोबिंद सिंह। ये निम्रता है, निम्रता। और जिन्होंने इवें आखिया भाई नंद लाल साहब होरां वो प्यारे गए, सत्कारे गए। अज भी कीर्तन असीं सुनते हैं, गुरु साहिबान की पवित्र बाणी तो इलावा सिर्फ दो व्यक्तियां गुरसिखां की बाणी रचना बाणी कह के सत्कार दे नाल पढ़िया गाया जाता है। मानयोग भाई गुरदास जी, दूजे कौन ने? भाई नंद लाल जी। उस बिरती में आके ना एक बार फिर तुसीं दोहराओ तो समाप्ति कर दी। अगला जो प्रोग्राम है वो प्राप्त करिए। हजूर ने बाबा कबीर जी होरां ने जो आखिया, हजूर सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब ने अपनी कलम के नाल दर्ज किया। यह साडियां बिरतियां ने संतां मानो दूतां डानो, एक टवारी मेरी दिवस रैन तेरे पाओ पड़ोसों, केस चवर कर फेरी। हम कुकर तेरे दरबार, हम कुकर तेरे दरबार, हम कुकर तेरे भौंके आ गए बदन पसार, भौंके आ गए बदन पसार, भौंके। वाह वाह, भुलों की खीमा बख्शी हो जाए सबना। फिर बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। मैं कामना करता सतगुरु महाराज सानू सदा लई उड़ना बख्शे, सदा लई उड़ना बख्शे, सदा लई सरदारियां बख्शे। गुरु पातशाह साडे आउण वालियां नस्लां, आउण वालियां साडियां जनरेशन सरदारियां मानन अते कुल खलकत की सेवा करन, कुल खलकत का भला होवे। मैं गुरुद्वारा साहब के प्रबंध के मुखियां का फिर धन्नवाद करता होया, आप गुरु रूप संगतां का धन्नवाद करता होया खिमा मंगदा। किरपा करो जी सारे मिल के फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।